السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان جنید سلیم حسب حال کے ساتھ، اور آج شو کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، رادہ خادم اعلیٰ پنجاب، محترم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب. السلام علیکم میاں صاحب. جی السلام علیکم. جی خیریت ہے جنید صاحب؟ آپ اللہ کا شکر. میاں صاحب آپ ابھی تک کرنٹینہ میں؟ نہیں جنید صاحب، اس وقت تو میں ٹی وی میں ہوں. اچھا نہیں، لیکن اگر آپ کرنٹینہ چھوڑ چکے ہیں تو پھر تشریف لے آئیں ہمارے اسٹوڈیو میں، ہمارے سامنے بیٹھے. اچھا، وہ آپ وہ کرونا کے حوالے سے جی آئسولیشن کی میرا خیال ہے آپ بات کر رہے ہیں. جی نہیں، وہ تو اللہ کے فضل سے، بلکہ میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا خادم، ان کا نوکر شہباز شریف اللہ کے فضل سے وہ کرونا نیگیٹو ہو چکا ہے. ایسے میاں صاحب بائی دا وے آپ پازیٹیو کب ہوئے تھے؟ میں معافی چاہتا ہوں. اللہ کے فضل سے جنید صاحب ساری زندگی شہباز شریف نے پازیٹیو گزاری ہے. اچھا. اور میں تو ان برے ترین ورسٹ حالات میں بھی پازیٹیو ہوں. میں اللہ کے گھر سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ دوبارہ اس ملک کے اندر اچھے دن آئیں گے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں کرونا پازیٹیو کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں معافی چاہتا ہوں، میں دوسری طرف نکل گیا تھا. جنید صاحب کرونا پازیٹیو یہ میں کوئی 20-22 دن پہلے ہوا تھا. جی اچھا، تو اس کی رپورٹ وغیرہ کوئی آئی تھی سامنے؟ نہیں جنید صاحب، میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا تھا، مگر میرا اندازہ تھا. اچھا، اندازہ ہی تھا آپ کا. اور اللہ کے فضل سے یہ پوری قوم جانتی ہے کہ آپ کے اس خادم کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا. میں نے مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں نے لاہور کے ہر انڈر پاس کے تعمیر سے پہلے کہا کہ یہ 3 مہینے میں بنے گا، اور 3 مہینے میں بنا. میں نے گلی شاہ کا پل کہا کہ یہ 3 مہینے سے پہلے بنے گا. اب سب لوگ حیران کہ یہ اتنا بڑا پل کیسے بن سکتا ہے، مگر میرا اندازہ، شہباز شریف کا اندازہ صحیح نکلا، اور وہ 3 مہینے کے اندر بنا. میں جنید صاحب اس لیے یہ اپنا ٹیسٹ ویسٹ جو ہیں میڈیکل کے، اس میں بھی میں اب اندازے سے ہی کام چلاتا ہوں. بلکہ جنید صاحب آپ کے اس خادم پہ اب تو عوام اتنا ٹرسٹ کرتی ہے کہ یہ کرونا کے دنوں میں میرے گھر کے آگے لوگوں کا تانتا بندہ رہا ہے. یہ جو لوگ بیچارے 8,000، جنید صاحب یہ اس حکومت کا ظلم دیکھیں، 8,000 روپیہ یہ کرونا کے ٹیسٹ کا فیس غریب آدمی کہاں سے دے. وہ لوگ بیچارے جو 8,000 نہیں دے پاتے تھے، وہ بیچارے میرے گھر کے سامنے اپنے فیملی کے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو لے کے آتے رہے ہیں. اچھا، کہ میاں صاحب ذرا اندازہ لگا کے بتائیے کہ اس کو کرونا ہے کہ نہیں. زبردست. اندازہ تے میاں صاحب دا ہے نا، عوام نے بھی دیکھا ہے. 4 سال پہلے لکشمی چوک بارش کی کھلوتے سن پانی اینے میں بوٹ پا کے، میاں صاحب کہہ رہے سی 1 گھنٹے بعد پانی نکل جائے گا، وہ نکل گیا 1 گھنٹے بعد. میاں صاحب اندازے سے بتا دیتے تھے کہ 2.5 فٹ پانی ہم نے دیکھا ہے. یہ دیکھیں آپ غوری صاحب کی بات سنیں. جنید صاحب یہ تو خود ماشاءاللہ بارشی پانی کی مخلوق ہے، یہ آپ کو گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے جنید صاحب میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا. تو میاں صاحب جو آپ کے گھر پہ مریض آتے تھے، آپ صرف اندازے سے ان کو نیگیٹو یا پازیٹیو بتاتے تھے، یا سنا مکی کا کعوہ بھی دیتے تھے تھوڑا سا؟ نہیں جنید صاحب، میں دیکھیں، میں باصول آدمی ہوں، میں اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتا. یہ سنا مکی وغیرہ میں آپ کا پروگرام وہ دیکھ چکا ہوں، مجھے آپ ڈی ٹریک نہیں کر سکتے. میں آپ کے منہ سے بھی سن چکا ہوں کہ یہ سنا مکی والا سارا ڈرامہ ہے، یہ غلط ہے، ڈاکٹر کے پاس فوراً جانا چاہیے. اس لیے میں اپنی عوام کو، میں اپنی قوم کو غلط گائیڈ نہیں کر سکتا. اچھا چلے میاں صاحب یہ فرمائیں کہ عدالت نے کہا ہے کہ جب آپ کی رپورٹ نیگیٹو آ چکی ہے تو پھر آپ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں جنید صاحب، عدالت کا حکم سارا کفر، مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ کرونا بھی
बाहर ही फिर रहा है और मेरा अंदाजा है कि ये दोबारा भी मुझे हो सकता है। अल्लाह खैर करे। ये कोरोना बड़ा चालाक है जुनैद साहब, ये उस चालाक आदमी जैसा है जो किसी से अपना उधार लेने जाए तो वो घर से कह देते हैं कि वो घर नहीं है जी। तो वो जाता नहीं, वो गली में चक्कर लगाता रहता है। ये कोरोना की सेम वही कंडीशन है। ओह भाई, इसको पता भी चल जाए कि इसको एक दफा हो गया हुआ हूँ, इसको अब नहीं होना, मगर ये जाता नहीं है। ये सर आपने जो कोरोना के पैसे देने हैं दे दे ताकि वो गली से बाहर जाए। नहीं देखे जुनैद साहब, ये सिर्फ उसी की तरफ नहीं जाता जिसने इसके पैसे देने होते हैं, ये उसकी तरफ भी जाता है जिसके इसने पैसे लगवाने होते हैं। इसलिए अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है जुनैद साहब। ये हुकूमत तो हाथ पैर छोड़ चुकी थी, ये अल्लाह की मेहरबानी से ये कोरोना कंट्रोल हो रहा है। मियाँ साहब, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, दुनिया आपको दोबारा अपनी सीट पे देखना चाहती है। देखिए जुनैद साहब, मैं वाहिद आदमी हूँ दुनिया में जिसको कोरोना भी दुआ दे रहा है। साहब क्या मिसाल दे रहे, कोरोना तो गोल मटोल सा होता है। वो जुनैद साहब, वो पूरी दुनिया पे जितना खजल हो चुका है उसकी ताजी फोटो खींचे इसी तरह की आएगी। वो अब जुल्फी बन चुका होगा। ये सब फिर ये दुनिया का वाहिद कोरोना है जिसको खुद कोरोना हुआ हुआ है। जुल्फी अदर मुंह करी, वो कोरोना की तो गल्लां ही विच वड़ गई। बहरहाल मियाँ साहब आपको सेहत याबी मुबारक हो। अब आप सेहतमंद हैं, कोई आप काम शाम शुरू करें। काम शाम की शुरू करा, घर वाले नु सब्जी लिया दिया करा। हुकूमत हमारे पास है नहीं, कम की मैं सीनी प्लस सिनेमे दा रंग दा ठेका ले लवां। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਥਾਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ओ यार तुसी मैनू क्यों बाहर कढ़ना चाहते हो? तुहानू दस्सिया ते है बाहर कोरोना फिरन दे। अब ये तो बताया था ये कोरोना नहीं जुल्फी है हमारा। जुनैद साहब, वो कोरोना तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा है, उसका कौन सा इधर प्लेट लगी होती है, नूरदीन वल्द चिरागदीन। वो तो कोरोना है, वो तो नजर ही नहीं आता। अच्छा शहबाज शरीफ साहब, बाज लोग तो ये कहते हैं कि आप खामोशी से अंदर बैठ के वजीर आजम बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। जुनैद साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं जनाब? अंदर बैठ के वजीर आजम की तैयारी, ये वजीर आजम बनना है या हरीसा बनना है? वजीर आजम बनने के लिए बाहर निकलना पड़ता है जुनैद साहब। और मैं आपका खादम, आपका मैं ताबेदार हूँ। मैं सिर्फ अवाम की खिदमत करता रहा हूँ सारी जिंदगी, और आइंदा भी मौका मिला तो खिदमत करूँगा। मुझे वजारत उज़्मा का कोई शौक नहीं है। जुनैद साहब, ये तो बारहा दफा ये साबित हो चुका है कि आपका ये खादम सिर्फ खिदमतकार बनना चाहता है, वजीर आजम नहीं बनना चाहता। वरना ये जब खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम बने थे, उस वक्त बड़े मियाँ साहब ने पहले मुझे कहा था कि आओ जल्दी इस्लामाबाद। तो मैंने उनसे जाके कहा था कि देखें मियाँ साहब, देखें मैं पंजाब में खिदमत कर रहा हूँ, मेरे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर मैं उनको डिस्कनेक्ट करके यहाँ आया तो काम खराब होगा सारा। मैं तो सिर्फ खिदमत करने वाला आदमी हूँ जुनैद साहब, मैं लालची नहीं हूँ मैं ओहदों का। वैसे ये जो आपने बात की है, ये आप अपने हर प्रोग्राम में करते रहा करें। मियाँ साहब छोड़े सारी बातें, जनाब आप कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखो जुनैद साहब, कदम कौन बढ़ा रहे हैं जिसको टुरया भी नहीं जाता। गोगा जी, कभी आपने मुझे सादा पैदल चलते हुए देखा है? मेरी जो स्पीड होती है ना, आपके पीछे तो कुत्ता भी लग जाए तो आप उतनी तेज नहीं जाएंगे। गोगा साहब, आप तो माशाल्लाह इस तरह चल रहे होते हैं जैसे पहाड़ी इलाके में आदमी पानी की 2 बाल्टियां उठा के जा रहा होता है। मेयर साहब ये फरमाए कि नैब ने आप पे इल्जाम आयद किया है कि आपने सिर्फ तोहफों की मद में अपने अहले खाना से 94 करोड़ रुपए वसूल किए। ये कौन से तोहफे हैं? जुनैद साहब, पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है
یہ نیب والے کون سی میری سالگرہیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ سیدھی سی بات ہے, ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. اور یہ اب یہ وہ کیا وہ پتہ نہیں, یہ انگلش کا بلی کھمبا نوچے. ہاں یہ کہہ لیں. میں جنید صاحب میں آپ کو اب کیا کہوں, یہ نیب والوں کو ہمارے کسی بھی کیس میں کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ پتہ نہیں فارسی کا لفظ ہے یا انگلش کا, یہ بونگیاں مار رہے ہیں. انگلش کا لفظ ہے یہ, انگلش کا ہوگا ماشاءاللہ. آپ تو خود اولڈ راوین ہیں. اچھا میں نے کہا پتہ نہیں آپ کہہ لیں کہ آپ تو خود بونگیاں مارتے ہیں. نہیں جنید صاحب, میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں تو گورنمنٹ کالج کے زمانے میں بھی آپ کو دیکھتا رہا ہوں. آپ وہاں بھی ماشاءاللہ کنٹین پہ بیٹھے بھی سارے اپنے دوستوں کو ہوسٹ کر رہے ہوتے تھے. ماشاءاللہ آپ کوئی تھوڑے پرانے نہیں ہیں. میاں صاحب آپ مجھ سے 45 سال پہلے گورنمنٹ کالج میں تھے. نہیں میں جنید صاحب میں یہ مانتا ہوں میں آپ سے 1 سال سینئر تھا, مگر میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے. آپ ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑے فیمس آدمی تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جنید صاحب کہ جتنی ماشاءاللہ ہماری بڑی فیملی ہے اور آپس میں جتنا اتفاق ہے, ایسے نہیں ہم نے اپنے گروپ کا نام اتفاق رکھا, یہ اتفاق کی وجہ سے تھا. تو جتنا اتفاق تھا, مجھے تو اللہ کے فضل سے اتنے تحائف ملتے تھے, اتنے گفٹ ملتے تھے کہ کمرے میں جگہ نہیں بچتی تھی. رات کو سالگرہ والے دن مجھے بار برآمدے میں سونا پڑتا تھا. میاں صاحب آپ کیوں باعث ہوتے تھے, طائف میں کوئی جرمن شیفرڈ دے گئے تھا؟ جنید صاحب تحفے اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ کمرہ بڑھ جاتا تھا. جرمن شیفرڈ کیا آپ کو تو عادت پڑ گئی ہوئی ہے بیچ میں لافٹر لینے کی, اور آپ میرے ایک نیب کے سیریس ایشو میں لافٹر لے رہے ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تحفے دیتے تھے ساری فیملی میری, اور وہ سلسلہ آج تک اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. یہ کچھ مہینے پہلے میں نے اپنی 50ویں سالگرہ منائی ہے. تو آپ یقین کریں گے کہ ابھی بھی بچوں نے مجھے بے شمار تحائف دیے ہیں. حمزہ نے مجھے وہ تار والا ہیلی کاپٹر دیا ہے. تار والا ہیلی کاپٹر میاں صاحب؟ اتنا گھبرا کیوں رہے ہو, تم سے تار والا بھی نہیں چلتا. زلفی صاحب اس میں بھی ایک حکمت ہے. حمزہ سمجھدار آدمی ہے, اس نے اس لیے وہ تار والا ہیلی کاپٹر دیا ہے, پائلٹ والا نہیں دیا. کہ ان لوگوں نے پائلٹ تو بدنام کر دیے ہیں پاکستان کے, اس لیے اب یہی سوچنا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہی ہیلی کاپٹر یا جہاز پاکستان میں چلایا جائے جو تار والا ہو, پائلٹ والا نہ ہو. زبردست. اور سلمان نے جنید صاحب وہ ذرا کنجوس آدمی ہے. اس نے مجھے وہ پمیری دی ہے, جو جسے بڑی زور سے بھی گھمائیں تو ساتھ ہی مودی ہو جاتی ہے. اور میرے پوتے نے جنید صاحب مجھے ریموٹ والی گاڑی دی ہے. وہ ماشاءاللہ اتنا سمجھدار بچہ ہے. وہ کہتا ہے کہ دادا ابو اس ظالم حکومت نے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آپ کو باہر نکلنے جوگا نہیں انہوں نے چھوڑا. آپ یہ ریموٹ والی گاڑی رکھیں, 2 سیل اس میں ڈلوائیں اور پہنچے اسلام آباد. سارے تحائف بڑے علامتی تحائف ہیں. زبردست. جی جنید صاحب آپ میرے کمرے میں جرمن شیفرڈ چھوڑ دیں اور میں علامتہ بھی نہیں چڈا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پچھلے 6 ماہ کے دوران 22 ٹریفک کانسٹیبل جو ہیں, ٹریفک وارڈنز ہیں, ان پر تشدد کیا گیا ہے شہریوں کی طرف سے. 22 ایسے واقعات 6 ماہ کے دوران. اب پوری دنیا کسی ملک میں, مہذب ملک میں, اس بات کا کوئی تصور ہے کہ آپ کو روکا جائے اور آپ نہ صرف یہ کہ بدتمیزی کریں, آپ ہاتھ اٹھائیں. اچھا حضور والا مجھے کہا ضرور. جی یہ آپ سے مخاطب. بڑی مہربانی. تو سر پھر ہم باقی چلے جائیں. آپ کی مرضی ہے یار, جیسی بات کرنے دیں ہم سے. جی سر. جی آپ سے مخاطب ہوں میں. حضور والا آپ کو یاد ہے ہم اکثر اپنے شو میں
सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं सोसाइटी पे, समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? यस आ रही है। क्या बोला मैंने कहा है? आपने कहा है कि सोशल मीडिया के जो वो उसके इम्पैक्ट हैं, जो उसके तीव्र हैं, वो बुरा असर कर रहे हैं। बस मैं समझ गया हूँ, देखे सीसी मैं समझ गया हूँ। नहीं यार तुम समझते हो तो तुम हैट पहनते हो। अच्छा, हम सोशल मीडिया के जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं जी। वहाँ पे हमें बहरहाल पॉजिटिविटीज़ पर भी बात करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन पॉजिटिविटीज़ में, मस्बत पहलुओं में एक बात बहुत अच्छी हुई है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो पहलू हैं वो मलूज़ खातर रखने चाहिए। जी, वो जी। ये कि इससे पहले जब लोग अपनी ताकत के नशे में जब कार्य सरकार में, सरकारी काम में, हुकूमती कामों में मुदाखलत करते थे तो वो किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब कम से कम ये हुआ है कि कोई निचली सतह पर भी कार्य सरकार में मुदाखलत करता है अपने किसी ताकत, पैसे, असर और रसूख की बुनियाद पे, हाँ तो जी। वो फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे फ्लैश हो आ जाता जाता है, है हाँ जी। और हुकूमत ना चाहते हुए भी उस पर एक्शन लेने पे मजबूर हो जाती है। बेशक वो एक्शन जो है वो उसके बाद वो फिजल आउट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब अगर बिल्कुल मैं समझ गया तुम्हारी बात, ये जो हमारी बहनें सड़कों के ऊपर पुलिस वालों की बेइज्जती करती हैं, उस हवाले से वाकई ये बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल में जो पुलिस की तरफ से भी या पब्लिक की तरफ से आवाम की भी तरफ ये से, आती होती थी, उस पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। देखो ना, अब इस बात पे लोग, हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं या कम से कम इवन हमारा पूरा माशरा जो है सोशल मीडिया पे बैठ के सही कम से कम ये बात सोचने पे मजबूर हो गया कि यार इन खवातीन को अगर ये ज़बान मिली है, इस लहजे में ये बात कर रही हैं सरकारी अफसर से, सरकारी अहलकार से, तो उसके पीछे कोई ना कोई साइकी जो उनकी ये डेवलप हुई है, जो उनके ये जो यहाँ पे चीज़ है, असल में तो ज़बान पे नहीं है, असल में तो वो नशा यहाँ पे है। वो चाहे खातून हो, चाहे आपका बेटा हो सरकारी अफसर का, या कोई उसका रिश्तेदार हो, वो जो कुछ वो कह रहा है वो यहाँ से नहीं कह रहा, वो यहाँ से कह रहा है, वो नशा यहाँ पे है। तो वो नशा निकालना बहुत जरूरी है, वो कम से कम उससे कंट्रोल हुआ है। आपने घरों में तरबियत ही ये की हुई है, आपने अपने बच्चों को, एक जो ताकतवर आदमी है उसने तरबियत ही ये की हुई है कि मेरा नाम हो, तुम्हें कोई कह सकता है कुछ, तुम्हें क्यों नहीं कुछ कह सकता। बहुत अच्छी बात है। आप सबसे पहले अपने बच्चे की तरबियत पे गौर करें, बिल्कुल, बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट को कोसें बैठ के या सोशल मीडिया को या पुलिस को, अपने बच्चों की तरबियत पे गौर करें जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब तो मुझे एक उस पुराने उस्ताद थे, टीचर, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। वो कहते हैं कि हम लोग पहले तालीम और तरबियत की तरफ गौर करते थे, अब सिर्फ तालीम पर। तो वो जो तरबियत बच्चे की होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी, ये जो आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पे फंसा होता है, यहाँ पे है वो नुक्स जो है जी, वो वाकई यहाँ पे भर जाता है। और हम भरते हैं, हम भरते हैं। जो खुद मतलब जो भी सोसाइटी का ताकतवर शख्स है, जिसके पास जितनी भी ताकत है, जितना भी असर रसूख है, जितना भी पैसा है, वो असल में अपनी औलाद या अहले खाना के दिमाग में खुद भरता है, अपने रवैये से भरता है। यार मैं कल्ला जा रहा होता हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि यार जुनैद सलीम मेरे पीछे है, बड़ी ऐसी बात है, मालका साहब कोई मुझे रोकता है पुलिस वाला, तो मैं फौरन अंग्रेजी शुरू कर देता हूँ। That's problem। जबरदस्त। वो फिर कहता कि वो ये जो अपना दें, ये काट कूट दिखाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, में दिखा देता। स्कूटर का तो मैंने उस वक्त बनाया था जब अभी स्कूटर बना नहीं, तो बच्चे साथ बैठे हो अगर मेरे स्कूटर पे, बाखुदा, तो मैं सिर्फ बच्चों की तरबियत के लिए उसके साथ बहुत डिसेंट बोलता हूँ, उसको सर कहता हूँ, अकेले में भी कहना चाहिए। ये तो मैं ऐसे और आखिर में इसका चालान सिर्फ गलत अंग्रेजी बोलने पे होता है। वो इम्प्रेस इस बात से होते हैं कि यार ये तो पढ़ा लिखा आदमी भी है, इसके पास लाइसेंस भी है, और ही इज वेरी सख्त इंटेलिजेंट एजुकेटेड मैन। अच्छा, ये दो तरफा मामला है। जैसे आपने कहा ना कि अगर पुलिस की तरफ से कोई ज्यादती होती है तो वो भी मंजर आम पे आता है, पुलिस तशद्दुद की चीजें भी, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ताकत के नशे में, ताकत के जोम में मुब्तला है, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह से। अगर एक तरफ सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जो लापरवाहियां हैं और जो जालमाना रवैये हैं वो
سامنے آتے ہیں تو دوسری طرف ان پیشنٹس اور ان کے لواحقین کے رویے بھی سامنے آتے ہیں کہ جب وہ بات پہ ڈاکٹرز کو زدوکوب کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈاکٹرز کو نرسوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں, خدمت کر رہی ہیں تو گالیاں دینی شروع کر دیں. یار کو عقل کرو یار, یہ قوم کی بیٹیاں ہیں, یہ خواتین ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ انہوں نے حوصلہ کیا باہر نکل کے کام کرنے اور آپ کا ہاتھ بٹانے کا. تو اس طرح کا رویہ نہ رکھو کہ آگے والدین پھر اپنی بچیوں کو کہیں کہ بھائی نہیں اجازت نہیں ہے باہر جانے کی, کسی بھی سروسز میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ واقعی بہت اچھا ٹاپک تم نے چھیڑا ہے جنید سلیم. جس دن ویسے ہی تم ڈارک بلو کوٹ پہنتے ہو میرا پپی لینے کو دل کرتا ہے, مگر دس ٹاپک از مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تمہیں داد. This topic is مجبورنگ you. ہر بندہ مجبورنگ ویری سخت. دیکھیں جی عزیزی صاحب, کوئی طاقت اپنی چونک پہ دکھاتا ہے, کوئی کسی پہ. گوگا جی ایسے نہ کوئی جدوں بھی طاقت آئے نا باجی میرا گھیو والا ڈبا کھول دے, باجی اب مینوں اندروں فریج باہر کڈا دے. یار یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی پرابلم ہے. جس طرح تم جب بھی کوٹ پہن لو تو تم سنپ ہوئے ہوتے ہو. کوٹ پہنا ہونا تو ہلکا سا دبیا ہوتا ہے, بیچارے کا قد چھوٹا ہو جائے. بھائی جان کوٹ کا وزن جو ہے وہ 1.5 کلو ہوتا ہے, بیچارے کا اپنا 750 گرام ہے. لگتے نہیں انسان, لگتے کوئی حکیم دا نسخہ ہے. 2 ڈنڈیاں زلفی پا لینا جی. جب بھی جہاں پر بھی بات ہوتی ہے نا یار تمہارا وزن کتنا ہے تو فوراً بڑے فخر سے بتاتا ہے 65 سر. وہ کہتے ہیں کلو گرام یا گرام. اچھا ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے, کچھ دن پہلے ایئرپورٹ سے آتے ہوئے ایک میں اپنے فرینڈ کو لینے گیا تھا. اچھا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریے میں جو فوجی جوان کھڑے ہیں ان کے سینے پہ کیمرے لگے ہوئے. بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یار یہ تو کمال ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو کوڑا کوٹ کر کے نا یور لا کے پولیس کو بھی دے دیں. میرا خیال کہ لاہور میں تجرباتی طور پہ ٹریفک پولیس نے شروع کیا تھا, کیونکہ یار یہ گورنمنٹ ہے نا پولیس پہ تجربات بہت کرتی ہے. تجربہ گاہ بنا دیا پولیس خود سی ٹی او لاہور کے مطابق پچھلے 6 ماہ کے دوران 22 ٹریفک کانسٹیبل جو ہیں, ٹریفک وارڈنز ہیں, ان پر تشدد کیا گیا ہے شہریوں کی طرف سے. 6 ماہ کے دوران. اب پوری دنیا کسی ملک میں, مہذب ملک میں اس بات کا کوئی تصور ہے کہ آپ کو روکا جائے اور آپ نہ صرف یہ کہ بدتمیزی کریں, آپ ہاتھ اٹھائیں, آپ اس کو زدوکوب کریں. یہ اب بھی ہو گیا ہے پا جنید. میں نے ایمان سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے گجرانوالہ میں 2 کو پہلوان تھے ہمارے مشہور و معروف, اب بھی ہیں اللہ زندگی دے ان کو, وہ ذرا لکھنڈرے منڈے تھے اس وقت. انہوں نے ٹریفک والے ایک اہلکار کو کوٹ دیا روکنے پہ, اوپر سے پولیسیں آ گئیں, ان کو پکڑ کے لے گئے. ایس ایس پی جو اس وقت کا تھا اس نے کہا جی جو مرضی کر لو, سارا شہر آ جاؤ, میں اینو نہیں چھڑنا, ان میرے جوان دی وردی پاڑی, میں نہیں اس کو چھوڑوں. اور واقعی وہ ایک بہت بڑی نصیحت تھی پورے شہر کے لیے. اصل میں اب نا جی دونوں طرف سے غلطیاں پکڑی جاتی ہیں. اس کا کریڈٹ جو ہے بہرحال چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سوشل میڈیا کو دینا پڑتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے رپورٹر ہے. لیکن اس میں بہرحال ایک بات کا خیال رکھنا, ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس کے بعض جو ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہر بندہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو چیز وائرل ہوتی ہے وہ 100% سچ بھی ہو. اپنی اوپینین بناتے ہوئے ہمیں اس بات کو ملحوظ خاطر ضرور رکھنا چاہیے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے, جو بندہ یہ ویڈیو وائرل کر رہا ہے, جس نے بنائی ہے, وہ وہی کچھ دکھا رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہ بھی بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے. اور فوری طور پہ یقین کر لینا, فوری طور پہ گالیاں دینا شروع کر دینا, یہ بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے. کئی پولیس والے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں سر جی. اچھا یہ زلفی رات کو آ رہا تھا نا تو پولیس والے نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ زلفی کہتا فلم دیکھ کے آ رہا ہوں. اچھا کہنا اچھا فلم دیکھ کے تو سٹوری سناؤ. اس نے ساری سٹوری سنائی. اس نے کہا جی سر جی اب میں جاؤں. کہتا جانا کتنے ہے, گانے کنے سنانے ہیں؟ دنیا میں لینا چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تم اپنا علاج کسی ڈاکٹر سے کروا رہے ہو, ناراض ہو جائیں گے ہم. ایکشن سارے حکیم صاحب وہی کرتے ہیں جو امرود کھولیں تو روشنی کی وجہ سے ایک دم سنڈی نہیں کرتی. بہت زیادہ فرینک مریض جو ہے نا وہ حکیم صاحب کو پیار سے حکیم سنڈی بھی کہتے ہیں.
नाज़रीन, जड़ी बूटियों से इलाज का तरीक़ाकार एक मरतबा फिर वतन अजीज़ में बहुत तेज़ी के साथ मकबूल हो रहा है, लेकिन हुक्मा हजरात से बहुत सारी शिकायतें और इस तरीक़ा इलाज में मौजूद बहुत सारी कबाहतें ऐसी हैं जिन पर बात किया जाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और आज हमारे कटहरे में इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए खड़े हैं, बल्कि इल्ज़ामात का सामना करने के लिए तैयार हैं, एक जय्यद हकीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जय्यद इसको बाद में कहिएगा, पहले जिल्द तो करा लो उसको। इतना सा तो जय्यद नहीं होता। उनका दावा यह है कि वो खानदानी हकीम है, कहते हैं उनके दादा परदादा भी इसी शोबे से मुंसलिक थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अल्लाह आपकी जिंदगी करे। मैं दबा दूं पहले या बात कर लेंगे? नहीं मियाँ छोड़ दीजिए, अहले इल्म लोगों की महफिल में खड़े हैं, जरा बात का जवाब देने दीजिए। जी बोलिए, क्या बोलना? आपका हिकमत में क्या तजर्बा है, कौन सी सनद आप रखते हैं, यही फरमा दीजिए। क्या कह दिया जुनेद मियाँ, 70 साल खानदानी तजर्बा है हमारा। वो तो खानदानी 70 साल है, 70 साल में से आपका तजर्बा कितना है? बताए देते हैं। मेरे दादा हजूर ने ऑल इंडिया हुक्मा फेस्टिवल में से गोल्ड मेडल जीता था, और वो भी सोने का। गोल्ड मेडल जीता था, वो भी सोने का। तो गोल्ड मेडल सोने का ही होता है, वो तो पित्तल का होता है। नहीं, तो दादाजी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो अब आपके पास मरीज आता है तो उसको दादाजी की कवर में लेके जाते हैं। अरे मियाँ, आजकल बीमारी की तशखीस के लिए जो हजारों रुपया आप लोग टेस्टों पे लगा देते हैं, ये नाचीज ये 3 उंगलियां रख के वो सारी बीमारी बता देता है। वाह 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 वाह। तो 3 उंगलियां जब रखते हैं तो मरीज को महसूस होता है? आपको तो चाहिए कि जूती उतार के मरीज की नबाई के ऊपर छलांगे लगाए, फिर उसको पता चले कि कीम साहब चेक कर रहे हैं। इस तरह की बात ना करें, वरना फिर नाराज हो जाएंगे हम। ना 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 ना, नाराज ना करना। इसको नाराज हो जाए तो चौकी के नीचे घुस जाता है। ये हकीम साहब खुशबाश हो जाएंगे तो नाराज क्यों हो जाओगे? आपको पहले भी बोला है गोल्ड मेडल जीता है, और वो भी सोने में। दादाजी ने कि आपने भी? भाई हम उनकी औलाद हैं, दादा अबू ने जीता तो वो हमारा ही हुआ ना। आपका किस लिए हुआ? गोल्ड मेडल आपने गर्दन में डाल लिया तो फिर खड़े कैसे होंगे? आप गोल्ड मेडल में दिलचस्पी ना लिया करें, वो जो कबूतर के पाँव में घुंघरू नहीं डालते, ज्यादा से ज्यादा उसका रिस्क लिया करें। अच्छा हकीम साहब, आप लोगों पे सबसे बड़ा एतराज तो ये है कि आप जड़ी बूटियों की आड़ में स्टेरॉइड्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बार मरीज फौरी तौर पे शिफायाब हो जाए, उसकी तकलीफ में अफाका हो जाए, लेकिन आप दरअसल मरीज की सेहत से खेल रहे होते हैं उसको स्टेरॉइड्स दे के। जी 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 जी, वही इको गोलियां इन्होंने पीस के तो शीशी में डाली होती हैं। जिस तरह माड़ा बंदा नहीं बेचारा हर चीज में आलू डाल लेता है, उसी तरह ये हर मरीज के नुस्खे में वो दवाई डालता है। तौबा कीजिए हजूर, तौबा कीजिए, हमारा तो खानदानी पेशा है ये हिकमत वाला। कौन सा खानदानी पेशा? तुम अपना इलाज किसी डॉक्टर से करवा रहे हो। नाराज हो जाएंगे हम। एक्शन सारे हकीम साहब वही करते हैं जो अमरूद खोले तो रोशनी की वजह से एकदम सुंडी नहीं करती। बहुत ज्यादा फ्रैंक मरीज जो है ना, वो हकीम साहब को प्यार से हकीम सुंडी भी कहते हैं। अच्छा सुंडी साहब, ओ सॉरी हकीम साहब, आपका मतलब है कहाँ? मियाँ चांदनी चौक पे बड़ा बोर्ड इस खादम का ही लगा हुआ है। पाजनैद मुस्तनद हकीमों को तो पता होता है ना कि कौन सी जड़ी बूटी कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, और फिर उसका कोई अल्लाह ना करे साइड इफेक्ट है तो उनको कैसे कंट्रोल करना। बिल्कुल। ये जो अनपढ़ हकीम हैं ये तो इतने खतरनाक होते हैं, ये जो प्यो दादा सारी जिंदगी साल लिए फिर सुनाते रहते हैं, ये तो इतने खतरनाक होते हैं। मरीज अल्लाह माफ करे अगर को अभी नबी हो जाए दवाई नल, तो फिर साइड इफेक्ट यही होता है कि इन्हां दी हट्टी हफ्ता बंद रहिंदी। क्या बात कर रहे हैं, हमारी दुकान तो बड़ी ईद वाले दिन भी खुली रहती है। हाँ हकीम साहब बड़ी ईद वाले दिन अपने मतब में बैठ के सिरी पाए भी भूनते हैं। ओ जुनेद मियाँ, बकरा ईद पे बसियार खोरी की वजह से हमारी हाजमे वाली फक्की बड़ी बिकती है। हकीम साहब सीधी तरह दसो, तो को है ही फक्की है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ पहलवान जी, उनके पास और दवाइयां भी हैं, तुम उनसे सिर्फ लेने ही फक्की जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा डिफेक्ट सिर्फ फक्की वाला है। सुन रहे हो, गोल्ड मेडल फैमिली है, वो भी सोने का। केड़ा गोल्ड मेडल हकीम साहब, तो शाम ਨੂੰ अपने पैर सुज जाते ने। यार वो खुद सुझाते हैं, उनको जुराबें खुली होती हैं।
वो फिर पैर सुजा लेते हैं ताकि जराबे फिट हो जाए। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। जाओ फिर हम नाराज हो गए हैं। हकीम साहब उठो, खुडे 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 खुडे। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। और मैं सुन के हैरान हो गया उन बुजुर्गों से कि देसी मुर्गा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से खत्म हो रहा है। कहता कि अब तो गांव में चले जाए ना, गांव में तो उधर देसी मुर्गा नहीं मिलता। साडा कुकड़ां दा खोडा वे बाबुल असों विक जाना, साडा कुकड़ां दा खोडा वे। सॉरी अजीजी खैर है? क्या हो गया आपको? खुडा कुकुड़ माइंड तो नहीं किया कोई खुडा कुकुड़ तुमने तो नहीं माइंड किया, अब बाकियां दी फिर खैर। यार बात मैं ये करना चाह रहा था पा जुनैद, आज मैं एक बाजार में दुकान मैंने देखी जिसने ऊपर लिखा हुआ था देसी मुर्गे। अच्छा। और खुडा उसका फुल था। अच्छा। मैंने उधर खड़े होकर उससे पूछा कि ये देसी हैं? शक्ल वजह से वो देसी लग रहे थे, बिल्कुल वो जो लाल पीले होते हैं। हाँ जी। सबने देखे ही हुई है पाजन, तुमने भी तो देखे। यार मैं को पागल हूँ इधर जो वो मैं अपनी यार इस आदमी को कहा कि ये इस तरह ना मेरे साथ करे। लेकिन मैं धड़ाधड़ नॉलेज तकसीम कर रहा हूँ और वो अपने आरे लगा हुआ है। मैं भी नॉलेज ही इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं कोई तुम लोग इस 6 फोन भी खरीद लो तो उसमें से वो नॉलेज नहीं निकलेगा जो ये के बैटरी मुक जाए तो नॉलेज मुक जाए। भाभी दी फोटो दिखा दो तो सारा नॉलेज बन जाएगा। यार जाने दो, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक बड़ा बोलना बुलाए, अल्लाह माफी दे, अल्लाह की रहमत है। 12 साल हो गए हैं बैटरी मुकी है, नॉलेज ही तकसीम हो रहा है। ऐਵੇਂ नहीं तुम अब दानिश्वर गिने जाते। वैसे बाय द वे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तेरा मुंह इतना है जी में इसको नॉलेज नहीं कहते, इसको दानिश्वर कहते। क्या कर शौक भी तुम्हें बड़ा पड़ा हुआ है और ऊपर से कह रहे हो इसे नॉलेज नहीं कहते। तड़ नॉलेज बांट रहा हूँ। बड़ी बात है, इतना नॉलेज तकसीम कर रहे हो जीजी, कभी नान हलीम भी तकसीम करो। यानी अगो शिगिर्द देखो केड़े में रख ले नॉलेज नु कोई समझ नहीं रहे हो, नान हलीम नु है। आज नॉलेज फीका नहीं है, नमक मिर्च कम है ना। उस्ताद जरा नॉलेज जरा बताइए अजीजी क्या था? लगाएंगे तड़का लगाएंगे। यार मैं बताना ये चाह रहा था कि वो देसी मुर्गियों का जो खुडा, यार उधर से फिर सदा कुकड़ां दा खुडा वे, वो खुडे के पास मैं खड़ा था। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि देसी मुर्गों की दुकान बड़ी देर बाद देखी है, तो पास एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि आइए खैर है खरीदना है, देख रहे हो बड़ा। मैंने कहा नहीं जी मैं हैरान हो रहा हूँ कि देसी मुर्गों की दुकान तो अब नजर ही नहीं थी आती। तो कहते हैं कि ये भी देसी नहीं। उन बुजुर्गों ने कहा कि पुत्र ये मिस्री मुर्गे हैं। मैंने कहा जी मिस्री मुर्गे क्या मतलब? वो अरबी शरबी बोलते हैं। कहते हैं नहीं अयान तो पंजाबी में ही देते हैं वही। वैसे ये मिस्री मुर्गे हैं। और मैं सुन के हैरान हो गया उन बुजुर्गों से कि देसी मुर्गा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से खत्म हो रहा है। कहता कि अब तो गांव में चले जाए ना, गांव में तो उधर देसी मुर्गा नहीं मिलता। तो पा जुनैद मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं विटनेस हूं इस बात का कि देसी मुर्गा घर की प्रॉपर्टी समझा जाता। क्या बात है। एक भैंस और ये मुर्गे। देखिए हम लोगों ने ना ईमान से अपनी ख्वाहिशात इतनी वसी कर ली है कि अपने आप को स्यापा डाल लिया हुआ है। वरना खवातीन इतनी सुगड़ और इतनी समझदार और इतनी महदूद बेचारी ख्वाहिशों वाली होती थी कि घर में ये जो, जैसे मैं पहले भी 1-2 दफा ये बात कर चुका हूँ कि मझ की लस्सी, दूध, दही, मक्खन, ये इसको फूड फैक्ट्री कहते थे। तो ये बड़ा बेहतरीन होता था। जिसके पास भैंस है वो साथ भी 10-12 घर जो हैं उससे मुस्तफीद होते थे। लस्सी शस्सी ले जाते थे, दूध ले जाते थे। ये जो देसी मुर्गियां होती थी, देसी अंडे घर में होते थे। नो डाउट वलैती अंडे भी आ गए और फिर रोली पड़ गया, मगर ये एक घर की प्रॉपर्टी इस तरह होते थे कि बाजार से खरीदना नहीं पड़ता था।
ਘਰ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁਕੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਧੜਾ ਧੜ ਸੁਬह वो नाश्ते हो रहे हैं मुफ्त, घर में मेहमान आज तक इज्जत रही थी, वहीं से अंडे वहीं से अंडे शंडे, और किसी वक्त कोई अच्छा तगड़ा मेहमान आ गया, कोई रिश्ता रुश्ता देखने वाला, तो वही कुकड़ी विचों एक कदी विचों बेचारी ताल भी लेते। अजीजी मेरे ज़हन में बात अड़ी है कि ये जुल्फी जो ये दीवार के ऊपर से देखे ना तो देसी कुकड़ का मगालता लगता है। हल्का सा मुहांदरा है इसका। अच्छा, फिर अब ये सोच के मैं बड़ा दुखी हुआ कि देसी मुर्गा क्यों खत्म होता जा रहा है। जैसे साहिवाल की गाय जो थी हमारी, वो बड़ी ब्रीड मशहूर थी, बड़ा नाम होता था कि जी फलाने ने साहिवाल दी गां खरीदी। वो जीजी अभी नहीं, अभी भी है मेरे ख्याल के नहीं। बहुत घट हो गई, बहुत घट हो गई है। मुझे याद है कि दलेर मेहदी ने गुफ्तगू में एक दफा मुझे कहा कि पाजी जी साहिवाल दी गां। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार पाजी तुहानू किवें पता है साडे साहिवाल दी गां मशहूर है, हाँ। पूरे इंडिया में मशहूर है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पूरी दुनिया में लोगों ने उसमें यानी बेहतरी ला के उसको मजीद अच्छी गाय, अच्छी नस्ल बना दी। दूध उसका बढ़ाया है, उसकी सेहत की तरफ बीमारियों के खिलाफ जो उसकी कुव्वत मुदाफ़अत है उसको बढ़ाया है। उसमें खास बात ये होती थी साहिवाल की गाय में कि वो टिक्स के खिलाफ, ये जो चिचड़ पड़ते हैं ना, इसके खिलाफ रेजिस्टेंट होती थी, तो वो उन्होंने किया, कहीं से कहीं ले गए उसको। बात तो फिर मैंने यही करनी यार, फिर मैं जाके शामी साहब न बैठ जाऊँ। रिस्क लेते हैं तो ठीक है। ले लेने ने रिस्क को, मलंग आदमी ने। अच्छा जी, उन्होंने तो मुझे कई दफा कहा कि ये आई लाइक यू। मैंने कहा जी आपकी मेहरबानी है, और वरना आप जितने नामवर आदमी हैं तुम ये भी कह सकते हो ये गेट आउट। मेरे लिए तो कोई बात है। अच्छा, कहना मैं यही चाह रहा था जो पाज जुनैद ने कहा कि हम लोगों ने बजाय उनकी तरफ तवज्जो दे के उनकी हमारी इन प्रोडक्ट्स की तरफ हम अगर मतवज्जो होते, इनके जो सेहत का ख्याल करते, इनकी ब्रीड बढ़ाने की, इनकी जो प्रोडक्शन है उसमें अच्छा इजाफा करने की बजाय हमने इनको खत्म कर लिया। यार बखुदा मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कोई जरूरत पड़ी है किसी चीज की तो पिंड में अम्मा और ने अपनी मुर्गी बेच दी है, वो बकायदा इसको प्रॉपर्टी समझते। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों खत्म होता जा रहा है? इसलिए कि ये खवातीन का और बच्चों का काम होता था। बच्चे जो है ना जो कंप्यूटरों पे बैठ गए हुए हैं। हाँ जी। मुझे याद है कि घर में मुर्गियां होना बच्चों के लिए इतना मजेदार काम होता था। बिल्कुल सही। बच्चे उनकी देखभाल करते थे, उनका खुड्डा शुड्डा बनाते थे, उनके आरे लगे रहते थे। हाँ जी। स्कूल के बाद, पढ़ाई के बाद इस तरह की चीजों की तरफ सारी फैमिली तवज्जो देती थी। अब आ जाके सिर्फ खामद वाली सारे घूर रहे होंगे कि कहने भाई ने काम गलत करता है। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा हिस्सा इन चीजों के खत्म होने में औरत का है। बिल्कुल सही। औरतें ये ख्वाहिश करती थी, औरतों की ख्वाहिशात इतनी सी होती थी, और ये सबसे अहम ख्वाहिशात होती थी कि आपका घर का खर्चा कटे। ये खर्चा कटाने वाली चीजें थी, भैंस, देसी मुर्गी, अपने घर में कोई नुक्कर में सब्जी सुब्जी लगा ली, या बकरा वगैरह। हाँ जी, बकरा पाल के उसको बेच लिया या उसको अपना हलाल कर लिया बड़ी ईद पे, या बकरा बड़ा करके उसका नाम थैला रख लिया। यार मुझे यही दुख जो है ना वो ले दे गया है कि ये आदमी मेरे सीरियस सेगमेंट में जोक करता है। मैं सीरियस सेगमेंट को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा ख्याल है कि हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि जो महकमा लाइफ स्टॉक है ना, वो हमारे दही इलाकों में खवातीन को जाके ट्रेन करें कि बुनियादी तौर पे देखो ना, पहले बकरी के बच्चे होते हैं 70% मर जाते हैं, तो खवातीन कहते थे अल्लाह की रजा। यही बात सिर्फ मैं एक अर्ज करना चाहता था। चलो अब कर लो खत्म प्रोग्राम। अब नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। छोटी सी बात ये कि खबर और कदर कभी जीते जी नहीं मिलते, मरते ही कब्र तैयार और कदर लाजवाब। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।